آج میں آپ کو ایک ایسی دہشتناک اور پراسرار دنیا میں لے جا رہا ہوں جہاں ہر لمحہ موت کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور زندگی کا ہر قدم ایک خطرناک جوا بن چکا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے ایسے خوفناک کھیل میں کودنا پڑے جہاں موت آپ کا ہر پل پیچھا کر رہی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کہانی میں کچھ دوست ایک ایسی گیم میں پھنس جاتے ہیں جہاں ایک غلط فیصلہ انہیں موت کی گہری وادی میں دھکیل سکتا ہے اور بچنے کے لیے انہیں اپنے ہی دوستوں کی جان لینا پڑ سکتی ہے۔ یہاں زندگی اور موت کی جنگ ہے جہاں ہر لمحہ ایک نیا راز کھولتا ہے اور ہر دروازے کے پیچھے ایک نئی دہشت چھپی ہوئی ہے۔ کیا یہ دوست اس خونخوار کھیل سے زندہ بچ پائیں گے یا یہ کھیل ان کی آخری سانسوں کا سبب بنے گا؟ جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں کیونکہ اس کہانی کا ہر لمحہ آپ کو دم بخود کر دے گا۔ کہانی کا آغاز آریسو نامی لڑکے سے ہوتا ہے جو اپنے کمرے میں کمپیوٹر گیمز کھیلنے میں مصروف ہے۔ آریسو کو گیمز کھیلنے کا جنون کی حد تک شوق تھا، لیکن یہ شوق اس کے بھائی کو سخت ناپسند تھا۔ اچانک اس کا بھائی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے، ہر وقت گیمز کھیلنے کے بجائے کوئی جاب ڈھونڈو، ڈیڈ بھی تمہاری اس عادت سے ناراض ہیں۔ آریسو اپنے بھائی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے اس کے ڈیڈ سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آریسو انہیں بھی کوئی وضاحت دیے بغیر گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کا دل مایوسی اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی آریسو اپنے دوستوں کو میسج کرتا ہے، میرا گھر پر جھگڑا ہو گیا ہے، میں اب گھر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ پیغام کہانی میں ایک نئے موڑ کی شروعات کرتا ہے۔ منظر بدلتا ہے اور ہمیں آریسو کے دوست کاروبے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ کاروبے کی زندگی بھی الجھنوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا اپنی بوس کی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک افائر چل رہا تھا اور یہ راز افشا ہونے کے بعد اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ کاروبے کا ہر دن اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا۔ یہ دو کردار اپنی اپنی زندگیوں کی پریشانیوں سے گزر رہے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی کہانی ایک ایسا رخ اختیار کرنے والی ہے جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہمیں آریسو کے دوسرے دوست کاروبے کی کہانی دکھائی جاتی ہے۔ کاروبے کی زندگی پہلے ہی الجھنوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا اپنی بوس کی گرل فرینڈ کے ساتھ افیئر چل رہا تھا اور جب بوس کو یہ راز پتا چلتا ہے تو وہ غصے میں آ کر کاروبے کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ کاروبے کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں کہانی تیسری طرف مڑتی ہے اور ہمیں آریسو کے ایک اور دوست شوتا کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ شوتا اپنی زندگی میں مالی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آتی ہیں اور پیسوں کی سخت ضرورت کا اظہار کرتی ہیں۔ شوتا اپنی بچت کا آخری حصہ نکال کر انہیں دے دیتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے اب میں مزید مدد نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خود بھی پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اس نوکری سے اتنے پیسے نہیں ملتے۔ یہ تینوں دوست اپنی اپنی زندگی کی پریشانیوں سے لڑتے ہوئے ایک دن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر اپنی تمام مشکلات کو بھول جاتے ہیں۔ مستی قہقہے اور خوشیوں کے چند لمحے انہیں زندگی کی تلخیوں سے کچھ دیر کے لیے آزاد کر دیتے ہیں، لیکن یہ مستیاں زیادہ دیر نہیں چلتی۔ شہر کی بھیڑ میں جہاں ہر طرف لوگ اور گاڑیاں تھیں، وہ تینوں مزے کرتے ہوئے ایک چلتی ہوئی سڑک پر آ جاتے ہیں۔ اچانک ان کی حرکتوں کی وجہ سے ایک دن کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور سڑک پر زبردست حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہنگامہ دیکھتے ہی پولیس موقع پر پہنچتی ہے۔ تینوں گھبرا کر بھاگتے ہیں اور ایک پبلک ٹوائلٹ میں چھپ جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ایک اور بھیانک موڑ لاتا ہے۔ اچانک ٹوائلٹ کی روشنی بند ہو جاتی ہے اور ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے۔ باہر کا شور، ہجوم کی آوازیں اور گاڑیوں کی ہلچل سب ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ تینوں خوف اور حیرت کے عالم میں سوچتے ہیں کہ شاید پولیس جا چکی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مین روڈ پر پہنچتے ہیں ان کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ پورا شہر سنسان تھا، نہ انسان نظر آتے تھے، نہ کوئی گاڑی چل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا کے تمام لوگ اچانک کہیں غائب ہو گئے ہوں۔ کاروبے کہتا ہے شاید سب لوگ کسی فیسٹیول کے لیے گئے ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی اور یہ حقیقت ان کے دلوں میں خوف کی ایک لہر دوڑا دیتی ہے۔ وہ تینوں مختلف جگہوں پر جا کر دیکھتے ہیں۔ کاروبے اپنی شاپ پر جاتا ہے لیکن وہ بھی خالی ہوتی ہے۔ شوتا اپنی کمپنی میں جاتا ہے لیکن وہاں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ آریسو مین روڈ پر کھڑا حیرانی سے اس ویرانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی اور دنیا میں آ گیا ہو۔ آریسو مین روڈ پر کھڑا حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ چکا تھا اور اب اس کے لیے واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ تینوں دوست خوف سے لرزتے ہوئے سڑک پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور شام کا اندھیرا رات کے سکوت میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن پورے شہر میں کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا۔ وہ تینوں خوف اور تجسس کے عالم میں زومبیز کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ خیال آتا ہے کہ شاید دنیا کے تمام لوگ زومبیز میں تبدیل ہو چکے ہیں۔
लेकिन उनके ख्यालात का सिलसिला अचानक एक अजीब वाक़ये से टूट जाता है। उनके सामने वाली एक बिल्डिंग अचानक रोशनियों से जगमगा उठती है। ये देखकर उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन सिर्फ वही एक बिल्डिंग रोशनियों से चमक रही थी। इस बिल्डिंग पर एक पुरस्कार पैगाम लिखा होता है, द गेम इज अबाउट टू बिगिन। इसी दौरान शहर में मुख्तलिफ जगहों पर निशानात दिखाई देते हैं जो उन तीनों को गेम के मुकाम की तरफ ले जाते हैं। वो उन निशानात का ताक़ुब करते हुए एक पुरस्कार GM होटल पहुंचते हैं। होटल के अंदर दाखिल होने पर उनकी नज़र मोबाइल फोन्स पर पड़ती है जो बाहर एक मेज पर रखे हुए थे। वो तीनों दोस्त एक एक मोबाइल उठा लेते हैं और जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं इस पर एक पैगाम आता है, ओनली 2 minutes लेफ्ट टू रजिस्टर, द गेम विल स्टार्ट इन 2 minutes। अचानक उनके सामने एक लड़की नमूदार होती है जो खुद को शिबोकी के नाम से मुतारफ कराती है। शिबोकी कहती है, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें ये गेम खेलना होगा। लेकिन आरिसो और उसके दोस्त शिबोकी की बात मानने से इनकार कर देते हैं और होटल से बाहर जाने का फैसला करते हैं। यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। शिबोकी गुस्से में शोता का आइडेंटिटी कार्ड उठाकर होटल से बाहर फेंक देती है। जैसे ही कार्ड बाहर गिरता है, एक ताकतवर लेजर की शुआएं उसे तबाह कर देती हैं। वो तीनों लरस जाते हैं क्योंकि उन्हें अब ये हकीकत समझ आती है कि होटल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो लेजर शुआओं से मार दिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे कि एक और लड़की वहां पहुंचती है जो इतनी ही खौफजदा और लाइलम थी जितना ये तीनों दोस्त। वो भी मोबाइल उठाकर हैरानी और खौफ में उनके साथ शामिल हो जाती है। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका था और अब उन सबको गेम खेलना था। वो पांचों अफराद एक पुरस्कार लिफ्ट के अंदर दाखिल होते हैं जो उन्हें सीधा छुट्टी मंजिल पर ले जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलते हैं वो खुद को एक खाली कमरे में पाते हैं। कमरे में 2 दरवाजे मौजूद थे और उन्हें एक सही दरवाज़ा मुंतखब करना था, लेकिन ये इंतखाब उन्हें महदूद वक्त में करना था क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 मिनट थे। एक दरवाजे पर लिखा था लाइफ यानी जिंदगी और दूसरे पर लिखा था डेथ यानी मौत। जैसे ही आखिरी लड़की जो अभी अभी ग्रुप में शामिल हुई थी बेसाख्ता भागकर जिंदगी वाले दरवाजे को खोलती है, अचानक एक मुहलिक लेजर उसके चेहरे पर पड़ती है और वो फौरन हलाक हो जाती है। ये मंजर देखकर उन सब के दिल दहल जाते हैं। अब वो समझ चुके थे कि दरवाजे पर लिखा गया लफ्ज हकीकत से मुख्तलिफ हो सकता है। अगर दरवाजे पर जिंदगी लिखा है तो इसके पीछे मौत हो सकती है, और अगर दरवाजे पर मौत लिखा है तो इसके पीछे जिंदगी हो सकती है। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था और आखिरी सेकंड में वो चारों मौत वाले दरवाजे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं देखते हैं कि कमरे में आग भड़क उठती है और अगर वो वक्त पर न पहुंचते तो उनका अंजाम भी खौफनाक होता। अब वो एक और कमरे में पहुंचते हैं जहां एक बार फिर उन्हें जिंदगी और मौत में से किसी एक दरवाजे का इंतखाब करना था, लेकिन इस बार वक्त और भी कम था, सिर्फ 1 मिनट और 50 सेकंड। उन सब के चेहरों पर खौफ वाज़ेह था क्योंकि वो जानते थे कि एक गलत इंतखाब उनकी जान ले सकता है। आखिरी लम्हे में वो दोबारा मौत वाले दरवाजे को खोलते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर इस बार भी वो बच जाते हैं, लेकिन गेम उनके एसाब का इम्तिहान ले रही थी। अगले कमरे में वो दोबारा 2 दरवाजों के सामने खड़े थे, जिंदगी और मौत। लेकिन इस बार आरिसो ने कुछ महसूस किया। अपनी गेम खेलने की महारत की वजह से वो पिज़ल को समझने में कामयाब हो गया। वो तेजी से हिसाब लगाता है और बिल्डिंग के डायामीटर को जांचता है, जिससे उसे एक अहम इशारा मिलता है। आरिसो अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए उस पुरस्कार बिल्डिंग का मामा हल करने की कोशिश करता है। वो शिबोकी से कागज और कलम मांगता है और बिल्डिंग के डायामीटर का खाका खींचता है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि बिल्डिंग की साख्त स्क्वायर में है और उसमें कुल 9 कमरे होने चाहिए। वो हिसाब लगाता है कि 2 कमरे वो पहले ही अबूर कर चुके हैं, यानी मजीद 5 कमरे बाकी हैं। आरिसो की रहनुमाई में वो सब लोग एक एक करके बाकी 5 कमरों को कामयाबी से अबूर कर लेते हैं। लेकिन जब वो आखिरी कमरे तक पहुंचते हैं तो आरिसो अचानक उलझन में पड़ जाता है। उसके नक्शे के मुताबिक ये कमरा आखिरी होना चाहिए था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उनके सामने एक और दरवाजा मौजूद था। आरिसो जल्दी से अपनी कैलकुलेशंस का जायजा लेता है और आखिरकार सही दरवाजे का पता लगाता है। वो सब आखिरी लम्हे पर भागकर कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उसी दौरान शूता के पैर में आग लग जाती है। वो जल्दी से आग बुझा देते हैं, लेकिन शूता अब बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं उनकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक ताश के पत्ते पर पड़ती है। ये चिड़ी का 3 था।
अभी वो उस इशारे के बारे में सोच ही रहे थे कि उनके मोबाइल फोन्स पर एक नोटिफिकेशन आता है। 3 दिन का वीजा जारी कर दिया गया है। ये वीजा उन्हें 3 दिन तक बगैर कोई नया गेम खेले जिंदा रहने की इजाजत देता था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अगर 3 दिन के बाद इन्होंने कोई नया गेम न खेला तो उन्हें मार दिया जाएगा। ये हकीकत उन सब के दिलों में खौफ की एक नई लहर दौड़ा देती है। अभी वो इस सूरत हाल को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक उनके सामने एक जख्मी आदमी आता है। वो शख्स उनसे कहता है कि इसका वीजा खत्म हो चुका है। ये कहते ही आसमान से एक तेज लेजर आती है और उसे फौरन खत्म कर देती है। ये मंजर उन सब के लिए एक डरावने ख्वाब की तरह था। उनका दिल खौफ से कांप रहा था, लेकिन उसी वक्त कहानी एक और पुरअसरार मोड़ लेती है। मंजर बदलता है और हमें एक लड़की दिखाई देती है जो एक बुलंद बिल्डिंग की छत पर खड़ी है। इसकी नजरें नीचे मौजूद खौफनाक मनाजर पर हैं, जहां लोगों को एक के बाद एक लेजर की शुआओं से हिलाक किया जा रहा था। इस पुरअसरार दुनिया में हर चीज अजीब हो रही थी, जहां कोई नहीं जानता था कि असल में क्या हो रहा है। सीन बदलता है और हमें उस लड़की का माजी दिखाया जाता है जो एक बुलंद बबाला बिल्डिंग पर खड़ी थी। इस लड़की का नाम ओगी था, जो अपने पुराने दिनों में अपने वालिद के साथ चट्टानों पर चढ़ाई किया करती थी। फिर कहानी दोबारा हाल में लौट आती है और हमें वही सुनसान शहर दिखाया जाता है जहां हर तरफ मुकम्मल खामोशी तारी थी। आरिसू एक गाड़ी का लाक तोड़ने की कोशिश करता है। उसे लगता था कि शायद टोक्यो से बाहर की दुनिया नॉर्मल हो, लेकिन जब वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। गाड़ी के अंदर कुछ सब्जियां रखी हुई थी जो देखने में 7 या 8 दिन पुरानी लग रही थी, जबकि उन्हें इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। ये अजीब बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। आरिसू अपने दोस्तों के पास वापस लौट आता है और वो सब एक मॉल के अंदर जाकर खाने पीने की चीजें उठा लेते हैं। फिर वो लोग एक होटल में बैठकर इत्मीनान से खाना खाते हैं। क्योंकि शहर तकरीबन खाली था, वो सब एक घर में आकर आराम करने का बचते हैं। वहाँ शिबोकी के जख्मी पैर पर पट्टियां बांधने के बाद सब ये सोचने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, वो किस दुनिया में आ गए हैं और ये अजीब खेल कौन करवा रहा है। शिबोकी बताती है कि उसने पहले भी एक और खेल खेला था जिसमें सब मर गए थे और सिर्फ वो जिंदा बची थी, लेकिन वो सब समझते हैं कि सोचने से कोई फायदा नहीं। अब वो एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कोई नहीं है, तो उन्हें उसका लुत्फ लेना चाहिए। लेकिन आरिसू अब भी परेशान था। वो सबको समझाता है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और अगर हमारा वीजा खत्म हो गया तो हम भी मारे जाएंगे, और अगर हम खेलने गए तो खेल के अंदर भी वो दोनों मर सकते थे। और उनका दोस्त शौता अभी भी जख्मी हालत में था। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई नया खेल खेल सके। इसीलिए आरिसू कारोबे से कहता है कि उन दोनों को जाकर एक नया खेल जीतना चाहिए ताकि उनके वीजा के दिन बढ़ जाएं और वो टोक्यो में घूम फिर कर मालूम कर सकें कि वहां असल में क्या हो रहा है। रात को कारोबे और आरिसू को एक बिल्डिंग नजर आती है और पूरे शहर में वही वाहिद बिल्डिंग थी जो रोशनी में नहाई हुई थी, यानी वहां कोई खेल जारी था। वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां और भी काफी लोग मौजूद हैं। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो पहली बार खेलने आए थे। दोबारा वो सब एक मेज पर रखे हुए फोन उठा लेते हैं और खेल का नाम सामने आता है, टेक गेम। इस खेल में तमाम खिलाड़ियों को एक शिकारी से बचना था। वो पूरी बिल्डिंग के अंदर कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उन्हें इस एक शिकारी से बचना था जो उन्हें मारने के लिए आ रहा था। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया गया कि 2 घंटे के अंदर ये बिल्डिंग तबाह हो जाएगी। लेकिन बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा कमरा भी था जहां जाकर वो सब अपनी जान बचा सकते थे। उन्हें न सिर्फ शिकारी से बचकर उस कमरे को तलाश करना था, बल्कि अपनी जिंदगियां भी बचानी थी। वहां आरिसू और कारोबे की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उन्हें बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो पहले भी 5 गेम खेल चुका है, यानी वो गेम खेलने में काफी तजर्बा रखता था। वो आदमी उन्हें ताश के पतों का राज बताता है और कहता है कि अगर चिड़ी का पता आए तो उन्हें एक टीम गेम खेलना होगा, यानी सबको एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। अगर इवेंट का पता हो तो उन्हें लड़ना होगा, और अगर हुक्म का पता आए तो उन्हें लड़ना भी होगा और टीम का साथ भी देना होगा। लेकिन अगर दिल का पता आए तो वो होगा दिल का खेल, यानी उसमें कोई दिल की बाजी हारेगा, और ताश के पत्ते पर जो नंबर जितना बड़ा लिखा होगा वो गेम उतना भारी होगा। उन दोनों को कॉन्ट्रैक्टर की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो तीनों बिल्डिंग के अंदर घूमने लगे। बिल्डिंग के अंदर उस शिकारी को भी दिखाया जाता है जिसने घोड़े का मास्क पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बंदूक थी। जो भी उसके सामने आता वो मारा जाता था। सबसे पहले मारा गया वही कॉन्ट्रैक्टर। ये मंजर देखकर आरिसू और कारोबे छिप जाते हैं। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर छपकर हरकत कर रहे थे कि अचानक उन्हें 2 और लोग मिलते हैं।
वो लोग बज़ाहिर माफिया के लगते थे और वो पहले भी काफी खेल खेल चुके थे। अब चूंकि ये चिड़िया का खेल था इसलिए उन्हें मिलकर काम करना था। वो चारों एक टीम बनाते हैं और जैसे ही शिकारी उनके करीब आता है वो उस पर हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान शिकारी कारोबे को चाकू मार देता है। दूसरी जानिब आरिसू को ये काम मिला था कि वो उस कमरे को तलाश करे जहां वो सब महफूज हो सकते हैं। आरिसू देखता है कि बिल्डिंग में एक कमरा ऐसा है जिसके बाहर बहुत सारी गोलियां लगी हुई थी, मतलब शिकारी उस कमरे की हिफाजत कर रहा था। शायद वही वो कमरा हो जहां जाकर वो सब बच सकते थे। आरिसू जल्दी से भागता हुआ उस कमरे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहले ही एक और लड़का पहुंच चुका होता है। इसका नाम संतारो सिस्चैन था। संतारो एक इंतहाई ज़हीन खिलाड़ी था और वो भी समझ चुका था कि यही वो महफूज कमरा हो सकता है। वो दोनों मिलकर उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ एक और मास्क पहने हुए शिकारी मौजूद होता है। वो शिकारी आरिसू को पकड़ लेता है। संतारो बहुत खुदगर्ज था, वो आरिसू की कोई मदद नहीं करता। आरिसू किसी तरह खुद को उस शिकारी से बचाता है और भागकर सेफ जोन के अंदर पहुंच जाता है। सेफ जोन के अंदर 2 बटन लगे हुए थे और उन दोनों बटन को एक साथ दबाना था जिससे उस बिल्डिंग का बम डिफ्यूज होगा। आरिसू बिल्डिंग से चिल्लाता है कि उसे सेफ जोन मिल गया है। इसी दौरान हमें ओसागी भी दिखाई देती है जो कि उसी गेम को खेलने आई थी। क्योंकि हमें मालूम था कि ओसागी पहले पहाड़ों पर चढ़ने की माहिर थी, इसलिए वो बिल्डिंग की खिड़कियों के सहारे ऊपर चढ़ती चली जाती है। आखिरकार आखिरी मिनट पर आरिसू और ओसागी दोनों बटन को एक साथ दबाते हैं और बम नाकारा हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उन शिकारियों का मास्क उतर जाता है और वो भी आम इंसान निकलते हैं जिनके गले में एक बेल्ट बंधी हुई थी, यानी कि उन्हें इस काम पर मजबूर किया गया था। क्योंकि इस गेम में खिलाड़ी जीत चुके थे और शिकारी हार गए थे, इसलिए उन शिकारियों के गले के पट्टे फट जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कारोबे को एक वाकी टाकी पड़ा हुआ मिलता है। उस पर कोई कह रहा था कि हमें जवाब मिल गया है, सब लोग साहिल पर पहुंचो। कारोबे वाकी टाकी उठाकर पूछता है कि उन्हें कहाँ आना है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरी में उन सब लोगों के फोन पर हुक्म का निशान आता है, यानी कि उन्हें मजीद 5 दिन जिंदा रहने का मौका मिल गया था। उन्हें 5 दिन का वीजा मिल चुका था। दूसरी तरफ हमें संतारो को दिखाया जाता है जो मरे हुए शिकारियों की लाशों के पास जाता है और उनकी जीभों की तलाशी लेता है। उसे एक नक्शा मिलता है, लेकिन वो नक्शा देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब आरिसू और कारोबे अपने घर वापस पहुंचते हैं। शिबोकी कारोबे के पेट पर पुट्टियां बांध देती है क्योंकि गेम के दौरान उसे चाकू लग गया था। अब उन्हें तो मजीद 5 दिन का वीजा मिल चुका था, लेकिन शोता और शिबोकी के वीजा का ये आखिरी दिन था। लेकिन आरिसू और कारोबे ये फैसला करते हैं कि वो शोता की किसी गेम के अंदर मदद करेंगे और उसे वो गेम जितवा कर वापस ले आएंगे। वो चारों लोग एक नया गेम तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार वो सब एक गार्डन में पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि ये गेम सिर्फ 4 अफराद के लिए है। वहां एक मेज पर रखे हुए मोबाइल फोन्स और कुछ हथियार उनके सामने होते हैं और वो मोबाइल उठा लेते हैं। साथ ही मेज पर मौजूद हथियारों के बारे में भी एक पैगाम मिलता है कि उस गेम में भीड़ों को भेड़ियों से बचाना होगा और वो हथियार भेड़ियों की मदद करेंगे कि वो भीड़ों को मार सकें। उन्हें कुछ अनेक बैंड हेडफोन्स और गिलासेस मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेते हैं। लेकिन उस गेम की एक और खास बात ये थी कि अगर भेड़िया जीत गया तो उन चारों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। गिलासेस का भी एक फायदा था, अगर कोई भेड़िए की आंखों में देखेगा तो वो खुद भेड़िया बन जाएगा और पहले वाला इंसान भेड़ बन जाएगा। आसान अल्फाज में, अगर कारोबे भेड़िया है और आरिसू भीड़, वह कारोबे आरिसू की आंखों में देख लेता है तो आरिसू भेड़िया बन जाएगा और कारोबे भीड़। इस वक्त शिबोकी भेड़िया बनी हुई थी। अब तीनों दोस्त एक दूसरे से सलाह मशूरा करते हैं कि अगर वो शिबोकी को मार दें तो तीनों लोग जिंदा बच सकते हैं। कारोबे शिबोकी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन आरिसू ऐसा नहीं करना चाहता। अचानक आरिसू शिबोकी की आंखों में देख लेता है, जिसकी वजह से वो खुद भेड़िया बन जाता है। आरिसू भागकर एक जगह छिप जाता है और अपने गले में बंधे हुए नेक बैंड को खोलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अगर वक्त खत्म हो गया तो वही नेक बैंड उनके गले को काट देगा और उन सब की मौत हो जाएगी। अब आखिरी 3 मिनट बाकी थे और आरिसू एक कोने में बैठा रो रहा था, क्योंकि फिलहाल वही भेड़िया बना हुआ था और उसे अपने दोस्तों के वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब वो तीनों मिलकर मस्तियां किया करते थे। लेकिन अब वक्त ने ऐसा मोड़ ले लिया था कि उन्हें आपस में ही लड़ना पड़ रहा था। आरिसू नहीं चाहता था कि इसके दोस्त मारे जाएं, क्योंकि उस वक्त वो सभी भीड़ें बनी हुई थी और उनके पास वक्त की एक हद थी। अगर वक्त खत्म होने तक वो भेड़िया को नहीं मार पाते तो वो सब मर जाते। लेकिन कारोबे और शौता
मुख्तलिफ जगहों पर छप जाते हैं। वो दोनों अपनी मौत के लिए तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि आरसू जिंदा बच जाए। शूता शिबोकी को भी पकड़ लेता है और उसके मुंह को बंद कर देता है ताकि वो चीख कर बता न सके कि वो लोग कहाँ छिपे हुए हैं। आरसू उन्हें हर जगह तलाश करने लगता है ताकि वो अपने किसी दोस्त को भेड़िया बना सके और खुद मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वक्त खत्म हो जाता है और तमाम भेड़ें मारी जाती हैं, यानी कारोबे, शिबोकी और शोता। आरिसू अपने दोस्तों की लाशों के पास आकर ज़ारू कितार रोता है, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। इसकी जिंदगी में उसके दोस्तों की बहुत ज्यादा अहमियत थी और अब वो सब मर चुके थे। आखिर में आरिसू को दिल का 7 नंबर मिल जाता है, यानी यही वो दिल का गेम था जिसमें दिल की बाजी हारनी थी। ये था इस सीरीज का पहला हिस्सा और मैं जल्द ही दूसरे हिस्से के साथ वापस आऊंगा।